Rest is the style of heaven. God is always at rest. Heaven is at rest. So wherever God comes, rest comes. Devil is a restless devil. Wherever he rules, restlessness comes. When devil rules our lives, we go late. Then we are actually restless. This is a proof that demons are working in our lives. My spiritual father told me that going late is a very important tool for the evil to work in your life. When you are not punctual, you actually give a lot of room to the evil one. Somewhere we give room to the evil one by giving room to restlessness. और हम दुष्ट आत्माओं को जगह देते हैं जब हम अशांति को अपने जीवन में स्थान देते हैं. So always when God comes, rest comes. तो जब भी परमेश्वर आता है वहां पर विश्राम भी आता है. So rest enters the person's life when Jesus comes or the gospel comes inside. और विश्राम तभी उस किसी भी व्यक्ति के जीवन में आता है जब यीशु मसीह वहां प्रवेश होता है. Let us turn to Matthew chapter 11, which we were reading for some time now. Matthew chapter 11 verse 28. मत्ती 11वां अध्याय 28वां वचन. Jesus Christ is saying, "Come to me, all you labor and are heavy laden, and I will give you rest." और यीशु मसीह कह रहा है जो कोई परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम So the दूंगा. entry of Jesus is the entry of restful life. तो यीशु मसीह का प्रवेश होना और विश्राम का प्रवेश होना दोनों साथ Always होता है. understand, when gospel comes inside your life, rest comes inside इस your बात life. को समझ ले, जब सुसमाचार आपके जीवन में प्रवेश करता है, विश्राम भी आपके जीवन में प्रवेश If you are करता है. listening to me and you have no rest and you have no Jesus, you can just close your eyes and say, "Jesus, come into my heart." Immediately you will find rest in your soul. अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हो और आपके जीवन में कोई विश्राम नहीं है, तो आप इसी समय अपनी आंखों को बंद करें और कहे, यीशु तू मेरे जीवन में आ, और उसी समय तुरंत ही आपको एक विश्राम का एहसास होगा. Yes, after that you can enter a life of rest. और उसके बाद आप विश्राम के जीवन में ही प्रवेश कर सकते हैं. That begins your restful life. और वहीं पर आपके विश्राम के जीवन की शुरुआत होती है. Okay, so after that you need to sustain that rest by doing certain things in your life. और उसके बाद आपको कुछ कार्य करना होगा जिससे कि ये जो विश्राम आपने अभी पाया है वो हमेशा के लिए आपके साथ बना रहे. Many people, they stay at this point for life. They don't have any rest. और कुछ लोग ऐसी एक अवस्था में फंसे रहते हैं आयु भर कि उनमें जीवन में कभी भी विश्राम नहीं आता. They have just come to Jesus. वो यीशु मसीह के पास पहुंचे They हैं just have some faith in Him. और थोड़े सा विश्वास उनमें है, They have not gone to step 2. लेकिन दूसरे पड़ाव पर वो पहुंचे नहीं हैं. But the Bible expects you, every comer should become an overcomer. लेकिन बाइबल हमसे ये अपेक्षा करता है कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर यीशु मसीह में आता है वो विजेता बनना चाहिए. Because rest actually does not lie when you come to Jesus Christ. It lies when you grow with Him. और विश्राम सही मायने में केवल आप यीशु मसीह में जब आते हो तभी तक नहीं सीमित है, बल्कि जब आप यीशु के साथ आगे बढ़ते हो. So we have to always run after rest so that we have rest every time. और इसी कारण हमेशा हमें विश्राम के पीछे दौड़ना होगा ताकि हम हर दिन अपने जीवन में विश्राम को पाए. That's why Jesus is saying in verse 28, "Come to me." और इसी कारण 28वें वचन में यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पास आओ. And in 29 it says, "Learn from me." और 29वें वचन में लिखा है कि मुझसे सीखो. Huh? So there are many things we need to learn from Jesus. Just coming to Jesus is okay, but learning from Jesus will sustain that rest in our lives. तो कई बातें हमें यीशु से सीखना है. यीशु के पास आना अच्छी बात है, लेकिन यीशु से सीखना अधिक मायने रखता है. So when you learn from Jesus, you learn to overcome many situations of your life. तो जब आप यीशु मसीह से सीखते हो, अपने जीवन में कई सारे परिस्थितियों पर विजयी होने को आप सीखते हो. People live with a lot of challenges in this world. लोग कई सारे चुनौतियों के साथ इस दुनिया में रहते हैं. Because when the devil took over the whole world from Adam, he brought restlessness as a style
in this world. क्योंकि शैतान ने जब आदम के पास से इस दुनिया पर राज करने का अधिकार छीन लिया तो उसने अशांति को इस दुनिया में बना दिया. So he brought that type of restlessness into nations, into families, into communities, between friends. Everywhere he has brought that restlessness. तो ऐसी ही अशांति शैतान ने कई सारे राज्यों में, कई परिवारों में, कई लोगों के जीवन में, उनके मित्रों के साथ कई समूह में फैला दिया है. There is strife everywhere. Everywhere you see strife. और हर एक जगह आप लड़ाई झगड़ा देखते रहते हो. Okay, if there is a leader, the followers will not obey him. They will create some trouble. अगर कोई अगुवा है तो उसके चेले जो है वो उसकी बात नहीं सुनते, वो वहां पे कुछ ना कुछ परेशानी होती है. Every leader has a lot of, he has to go through a lot of strife from his subordinates. और हर एक अगुवा जो होता है उसे बहुत अधिक उसे लड़ाई झगड़े से गुजरना पड़ता Somebody है will think, चेलों की वजह I से. am more capable than him. कोई ना कोई ये सोचता है कि मैं उससे ज्यादा सक्षम हूँ. Okay, apart from this type of strifes, he has to go through a lot of financial crisis in his और world. इनसे बढ़कर और भी अधिक आर्थिक अवस्थाओं के झगड़ों में भी पड़ना पड़ता Then है. he has to overcome many sicknesses in his और life. कई बीमारियों को भी उसे जो विजय होना पड़ता है. Everywhere he faces challenges all over the world. और हर एक तरफ वो दुनिया में चारों ओर कई चुनौतियों का सामना करता है. So he has to all the time sustain that rest by doing something. तो हमेशा उसने कुछ ना कुछ करना पड़ता है जिससे कि वो विश्राम उसके साथ बना रहे. Coming to Jesus is step one. यीशु के पास आना ये पहला कदम है. But the thing is, every comer has to be an overcomer. लेकिन सत्य की बात यह है कि हर एक वो व्यक्ति जो यीशु के पास आता है उसको एक विजेता बनना If चाहिए. you don't overcome, you lose your rest. अगर आप विजेता नहीं बनते तो आप अपने विश्राम को खो देते हो. If you fail to overcome, you lose the rest of your soul, the rest of your life. अगर आप विजयी बनने से हार जाते हो तो आप अपने जीवन की जो विश्राम है उसे खो देते हो. Because there are many enemies which are already present in this world. क्योंकि कई सारे दुश्मन पहले से ही इस दुनिया में स्थापित हैं. Okay, let us read some of the things we have to overcome. और कुछ ऐसी बातों को हम देखेंगे जिस पर हमें विजयी होना है. Okay, and after we see those things, we will see what are the rewards of overcomers. और उसके बाद हम देखेंगे कि विजेता बनने का क्या हमें एक फायदा होता है. Every time you overcome, there is a reward along with that. हर एक बार जब आप विजयी बनते हो तो उसके साथ आपको एक फायदा भी होता है. Every time you overcome, God blesses you or takes you to another level. Okay, we have to overcome that evil one. Turn with me to 1 John chapter 2 verse 13. तो आप अपने बाइबल को खोले, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 13वां वचन. Yes, verse 13 it says, I write to your fathers because you have known him who is from the beginning. I write to you young men because you have overcome the wicked one. है पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो. है जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है. When all the religion are trying to please the evil spirits, Bible is the only book which says you can overcome evil spirits. और जब सारे धर्म दुष्ट आत्माओं को तृप्त करने के लिए, खुश करने की प्रयत्न करते हैं, बाइबल एकमात्र ऐसा किताब है जो लिखता है कि दुष्ट आत्माओं पर आप विजयी हो सकते हो. And you can even chase them out of your life. और आप उन दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन से भगा सकते हो. Yes, so God actually expects you to do that in your life. और परमेश्वर सचमुच आपसे अपेक्षा रखता है कि आप ये अपने जीवन में करें. You have to overcome the evil one. आपको दुष्ट आत्माओं पर विजयी होना है. Now many times we wonder, how can I overcome the evil one? और कई बार हम ये सोचते हैं कि दुष्ट आत्माओं पर हम विजयी कैसे हो सकते हैं. Now evil one always comes inside your life as witchcraft and sicknesses. और दुष्ट आत्माओं का आपके जीवन में प्रवेश जादू टोने से, काले जादू से या कोई बीमारी से प्रवेश करता है. Much of the sicknesses people get are basically by
the influence of the evil spirits. अधिकतर जो बीमारियां लोग झेलते हैं वो दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से होता है. Okay, so if you don't overcome those sicknesses, you cannot overcome the evil one. तो अगर आप उन दुष्ट आत्माओं पर विजयी नहीं हो सकते हो, तो आप इन बीमारियों पर विजयी नहीं हो सकते हो, तो दुष्ट आत्माओं पर भी विजयी नहीं हो पाओगे. Because Jesus Christ said a very beautiful statement. क्योंकि यीशु मसीह ने बड़ा ही सुंदर एक वचन कहा. Luke chapter 11 verse 22. लूका 11वां अध्याय 22वां वचन. Luke chapter 11 verse 22. लूका 11वां अध्याय 22वां वचन. When a stronger than he comes upon him and overcomes him, he takes from him all his armor in which he is trusted and divides his spoils. पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उससे जीत लेता है, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है. It talks about you overcoming the evil one along with Jesus Christ. और यहां पर लिखा है कि कैसे आप यीशु मसीह के साथ दुष्ट आत्माओं पर विजयी हो सकेंगे. See, sometimes you feel that the problem is bigger than you can solve. और कई बार आपको ऐसे लगता है कि मानो जो समस्या आपके सामने है आपसे भी बहुत बढ़कर है. It can be a financial problem, it can be a relationship problem, it can be a sickness. Sometimes we feel it is overwhelming. और ऐसा हो सकता है कि जो आपकी समस्या है, एक आर्थिक समस्या है, रिश्तों में समस्या है, या कोई बीमारी है, वो आपको बहुत ही व्याकुल कर देता है. That is always there is an evil spirit behind that. और हमेशा इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा होता है Which overwhelms you. जो आपको अधिक व्याकुल कर देता है. There is no challenge or problem which can overwhelm you. ऐसी कोई चुनौती या परेशानी नहीं जो आपको व्याकुल कर सकता है. Because every problem which overwhelms you, that has a spirit behind that. क्योंकि हर एक परेशानी जो आपको अधिक व्याकुल कर देता है उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा होता है. Yes, always there is an evil spirit. हमेशा उसके पीछे एक दुष्ट That आत्मा means होता you है. have to overcome that. उसका अर्थ है कि आपको निश्चित उस पर विजय प्राप्त करना है. Because unless you overcome that, you cannot divide the spoils. क्योंकि जब तक आप उस पर विजयी नहीं हो सकते तब तक उस लूट को आप बांट नहीं सकते. You cannot enter the blessing who that strong man is blocking you. और आप उस आशीष में प्रवेश ही नहीं कर पाओगे जिसका विरोध वो बलवंत व्यक्ति कर रहा है. Many are not able to overcome across and go to a better job. कई लोग इस पर विजयी होकर एक बेहतर नौकरी पर प्रवेश ही नहीं कर पा Many रहे. are stopped with one disease and they are not able to go forward. कई लोग एक ही बीमारी से रोक दिए गए हैं और उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाए हैं. Many people are stopped in certain places. That is the end of their growth. और कई लोग कुछ स्थानों पर रोके गए हैं और वो उनका अंत हो जाता है. Are you अटक गया क्या तुम लोग? That means you are stopped by an evil force of darkness. और क्या आप ऐसे कहीं फंस चुके हो, स्टक हो चुके हो, तो उसका अर्थ है कि कोई दुष्ट आत्माओं ने आपको रोक दिया है. If you are caught in a place, that means you are finished. An evil spirit is stopping you. अगर किसी एक जगह पे आप फंस चुके हो तो उसका अर्थ है कि एक दुष्ट आत्मा आपको रोक रहा है. God wants you to overcome that problem and come out of it. परमेश्वर चाहता है कि आप उस परेशानी पर विजयी हो सके और उस परेशानी से बाहर निकले. Many are stuck in a job. कई लोग एक नौकरी में फंसे हुए हैं. Many are stuck in a wrong place. कई लोग गलत स्थान पे फंसे हुए हैं. Many are stuck with the wrong friends. कई लोग गलत दोस्तों के साथ फंसे हुए हैं. Some people are stuck with some disease. कुछ लोग कुछ गलत बीमारियों के साथ फंसे हुए हैं. Some people are stuck with some issues, some problems which is consuming them. और कुछ लोग ऐसे परेशानियों में फंसे हुए हैं जो उनको निगल रहा है. I'll tell you, if you don't overcome, it is going to change your DNA. और अगर आप इस पर विजयी नहीं हो पाएंगे ये आपके मूल तत्वों को बदल देगा. I have seen happy people becoming sad people after a problem comes into their life and goes. मैंने ऐसे खुशहाल लोगों को देखा है जो बहुत ही दुखी लोग बन जाते हैं जब उनके जीवन में कोई परेशानी And दाखिल after होता that, है. there is no laughter in that man's life. और उस समय के पश्चात उस व्यक्ति के जीवन में कोई हंसी मजाक नहीं होता Because है. an evil spirit has attacked him. क्योंकि एक दुष्ट आत्मा ने उस पर घात किया है. Unless you overcome
those situations, I tell you, you cannot be successful or you cannot ever have rest in your life. और जब तक आप उन परिस्थितियों पर विजयी नहीं हो सकते, आपके जीवन में कभी भी आप विश्राम का एहसास नहीं कर पाओगे। Yes, let us see one more verse where Jesus Christ actually disarms the biggest evil spirits, that is the principalities and the powers. Let us turn to Colossians chapter 2 verse 15. कोलोसों की दूसरी पत्री उसका 15वां अध्याय हम देखेंगे। Many people are listening to these messages and they just go away without doing anything else. और कई लोग इस संदेश को सुनते हैं, ऐसे संदेशों को सुनते हैं और बिना कुछ करे वो यहाँ से चुपचाप निकल जाते get हैं। up and use their faith. उन्हें उठ खड़ा होना होगा और अपने विश्वास का इस्तेमाल करना होगा। When a sickness attacks you, you should get up and use your faith. जब एक बीमारी आप पर घात करता है, आपको उठ खड़े होना है और अपना विश्वास का इस्तेमाल करना When a है। financial situation attacks you, you have to get up and use your faith. जब एक आर्थिक परेशानी आपके जीवन में घात करता है तो आपको उठ खड़े होना है और अपना विश्वास का इस्तेमाल करना है। When somebody offends you, you should get up and use your faith. जब कोई आपका विरोध करता है, आपको चोट पहुंचाता है, तो आपको उठ खड़े होकर अपना विश्वास का इस्तेमाल करना है। That is the right thing to do to be victorious in your life. और अपने जीवन में जयवंत होने के लिए यही सही चीज होगा करने के लिए। Majority of the believers, they come to Jesus and every time some problem attacks, they come to Jesus. That's all. और अधिकतर लोग यीशु के पास तभी आते हैं जब कोई परेशानी उन पर घात करता है तो वो यीशु के पास पहुंच They जाते हैं। live a lifestyle of mediocrity. और वो हमेशा एक साधारण से जीवन बिताते रहते हैं। Huh? I'll tell you something. God never rest will never come when you live a life of mediocrity. जब आप एक सर्वसाधारण जीवन बिताते हैं तो आपके जीवन में कभी विश्राम नहीं आ सकता। Let us turn to Colossians 2:15. It says, Jesus Christ, he disarmed the principalities and powers and made a public spectacle of them, triumphing over them. और कोलोसों की पत्री दूसरा अध्याय 15वां वचन यूं कहता है, और यीशु ने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। When all the religions are afraid of witchcraft, here is one man, one human being, okay, Jesus Christ, who came from heaven on earth. He made a joke of the evil spirits. और जब सारे धर्म दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, यहां पर एक मनुष्य है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, जिसने शैतान का और दुष्ट आत्माओं का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया है। Jesus was 100% man. यीशु 100% मनुष्य ही थे। We just forget that. हम इसे भूल जाते हैं। And he is 100% God. और वो 100% परमेश्वर भी थे। We only remember that. हम केवल यही याद करते हैं। And picture Jesus Christ as a superman who could do things which we cannot do. और हम यीशु को ऐसे देखते हैं कि वो एक सुपरमैन के समान है, जो वो कार्य करता है वो हम तो कर ही नहीं सकते। We can do what Jesus Christ has done. लेकिन सत्य ये है कि हम वो हर एक काम कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने किया If है। Jesus Christ did a joke, made a principality into a joker, powers into a joker, even we can make them into jokers. अगर यीशु मसीह ने प्रधानता और अधिकारों को एक मजाक बनाकर रख दिया तो हम भी उसका मजाक बना सकते He हैं। just did not stop that. He did something. He has asked us that you also get involved with these principalities and powers in making them into jokers. और केवल यीशु ने ये काम किया ऐसा नहीं है, बल्कि यीशु मसीह ने हमसे भी ये कहा कि तुम भी जाओ और वही यही काम करो, तुम भी इन प्रधानताओं का मजाक बनाकर रखो। Ephesians chapter 6 verse 12. इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 12वां वचन। See, Bible has such an extensive teaching on evil kingdom, evil spirits, evil beings. और बाइबल का इतना अधिक वो सिखाता है दुष्ट आत्माओं के विषय, दुष्ट आत्माओं के राज्य के विषय। Bible is not a boring book or boring religious book. Bible is an exciting manual for our successful life. और बाइबल हमारे लिए कोई एक बोरिंग सा कोई किताब नहीं है, कोई धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए उत्साह से भरा, हमें उन्नति के साथ आगे बढ़ाने वाला किताब है। Ephesians 6:12 says, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities and powers, against rulers, against spiritual hosts.
इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 12वां वचन कहता है, क्योंकि हमारा यह अमल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। So it is not that God said, I have disarmed the principality. He has said, you have to begin your life with wrestling with them. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैंने उन सबको हरा कर रख दिया है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन की शुरुआत ही उनको हराने से होनी चाहिए। Instead of wrestling with human beings, you wrestle with these spirits. You will have more peace and rest in your life. और केवल अन्य मनुष्यों से, लोगों से लड़ाई झगड़ा करने से बेहतर होगा कि आप इन दुष्ट आत्माओं से लड़े और आप अपने जीवन में अधिक शांति को पाएं। Many people are thinking that he is my trouble, she is my trouble, they are my trouble. I tell you, it is a principality you are actually fighting with. और कई लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, वो व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, ये स्त्री मुझे परेशान कर रही है, लेकिन सत्य यह है कि प्रधान है जो आपके विरोध है। Individually, we have to fight the evil spirits हमें व्यक्तिगत तौर पर इन दुष्ट आत्माओं पर आक्रमण करना होगा and overcome them. और उस पर विजय प्राप्त करना And होगा। as a collective fellowship or the church or house of prayer, we need to overcome them. एक सभा होने के नाते, एक कलीसिया होने के नाते, हाउस ऑफ प्रेयर के एक सदस्य होने के नाते हमें इस पर विजय प्राप्त करना है। Let us see Ephesians 3:10. इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 10वां वचन देखेंगे। To the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। So actually the church has to make, principalities and powers are in heavenly places, but our work, we may be living on earth, but we have to see that we deal with the principalities and powers to really have restful life. शायद हम इस पृथ्वी पर हम यहाँ पर जी रहे हैं, लेकिन सत्य की बात यह है कि उन आत्मिक स्वर्गीय स्थानों पर रहने वाले इन प्रधानों के साथ हमें सही काम करना होगा। The second thing we need to overcome is the world. और दूसरी बात जिस पर हमें विजय प्राप्त करना है वो ये दुनिया है। Many times we don't know what world is. और कई बार हम नहीं जानते कि ये दुनिया क्या है, because the world is educated and developed by the evil spirits. क्योंकि इस दुनिया का बढ़ावा और उसका पढ़ाई सारा ये दुष्ट आत्माओं ने करवाया है। So that's why many things of this world is basically against the spirit of God. और इसलिए कई बार इस दुनिया की कई सारी बातें परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध है। But the Bible says you need to overcome the world. लेकिन बाइबल हमसे कहता है कि आपको इस दुनिया पर विजय प्राप्त करना है। If you don't overcome the world, you will never get anything from this world. अगर आप इस दुनिया पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते तो आप इस दुनिया से कुछ हासिल ही नहीं कर पाओगे। See, many things of our life, it actually comes from the world. और हमारे जीवन के कई सारी बातें इस दुनिया से आती है। So we need to put the world straight to really have everything correct in our तो life. हमें इस दुनिया को सही रास्ते पर लाना होगा ताकि हमारी बातें सही रास्ते पर चले। Okay, if you don't do these things, we cannot enter the restful life which God has for us. अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आप उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। 1 John chapter 5 verse 4 says, "For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, our faith." पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4वां वचन यह कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। Verse 5, "Who is he who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God?" और 5वां वचन यूं कहता है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। So we have to overcome the world. तो हमें इस दुनिया पर विजयी होना है। Okay, now what is the world? तो ये दुनिया क्या है? World is the system in which we are living in. और दुनिया ऐसी एक सिस्टम है जिसमें हम जी रहे हैं। Okay, we live in India, some people live in United States, some live in Saudi Arabia, whatever it is, we are living in the world. और हम भारत देश में रह रहे हैं, कुछ लोग अमेरिका में रह रहे हैं, कुछ लोग यूनाइटेड और अरब देशों में रह रहे हैं, चाहे आप कहीं पे भी इस दुनिया में रह रहे हैं। And we should understand this world has a spirit which is against the spirit of God. और हमें इस बात को समझना है कि इस दुनिया की जो आत्मा है वो परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध कार्य कर So रही है। sometimes we need to identify the spirit behind the action. तो कई बार उस कर्म के पीछे जो दुष्ट आत्मा है उसे हमें पहचानना होगा। Okay, friendships are very good, मित्रता तो बहुत अच्छी है, but some friendships are very
evil. लेकिन कुछ मित्रता ऐसी होती है जो बहुत दुष्ट होता है। Laughter is good, हंसी मजाक करना ये अच्छी बात है, but some type of a laughter is very evil. लेकिन कुछ प्रकार के हंसी मजाक जो है वो बहुत दुष्ट होते हैं। Food is very good. भोजन बहुत ही अच्छा है, Some types of food are dangerous. लेकिन कुछ प्रकार के भोजन ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। Okay, education is very good, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी बात है, but certain education you should never get. लेकिन कुछ प्रकार की पढ़ाई और सीख बहुत ही आपको कभी पाना नहीं है। Talent is good, और टैलेंट का होना बहुत अच्छी बात है, some talents is not good. लेकिन कुछ प्रकार के टैलेंट आप में होना ये अच्छी बात नहीं है। For example, dance, is it good or bad? उदाहरण के तौर पर नाचना ये अच्छा एक टैलेंट है या बुरा है? Huh? आप बताइए। Dancing, we have seen godly people dancing, हमने दैविक लोगों को देखा है जो नाचते थे, but not all dance are good. लेकिन हर एक प्रकार के जो नृत्य होते हैं वो अच्छा नहीं है। Huh? Some dances will make you sick. कुछ ऐसे प्रकार के नाच है जो आपको बीमार कर सकता है। Okay, before making you sick, it will make you sexy. और वो आपको बीमार करने से पहले आपको एकदम यौन से संबंधित कार्य कराएगा। So we should always understand. You should know that the world is good only. It's very beautiful, but it has a spirit. आपको समझना है ये दुनिया तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसके पीछे एक आत्मा है। Love is good, प्रेम अच्छा है, but not all love is good. लेकिन हर प्रकार का जो प्रेम है वो अच्छा नहीं है। Let's turn to 1 Corinthians chapter 2 verse 12. पहली कुरिन्थियों की पत्री दूसरा अध्याय 12वां वचन। 1 Corinthians chapter 2 verse 12. It says, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that we have been freely given to us by God. परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। So world has a spirit. तो दुनिया में एक आत्मा है। This spirit is there in people, in behavior, in cultures, in traditions, in even articles. और ये जो आत्मा है ये कई लोगों के अंदर है, कई उनके स्वभाव के अंदर है, कई रीति रिवाजों में है, कई वस्तुओं में भी है। Always those things bring restlessness in you. हमेशा ये चीजें आपके जीवन में अशांति लेकर आएगी। Some of the characters you see in the TV, they are completely symbols of restlessness. और कुछ ऐसे लोगों को आप टीवी पर देखते हो जो पूरी तरीके से एक अशांति का चिन्ह है। To be enthusiastic is godly. और बहुत ही उत्साह से भरे रहना ये तो दैविक है। The word enthusiastic has God in it. और जो शब्द enthusiastic है उस शब्द में परमेश्वर का नाम को उल्लेख है। But if you see certain people, they are very restless. लेकिन आप कुछ लोगों को देखें वो बड़े ही अशांत रहते हैं। Okay, in the kingdom of God, they are enthusiastic. वो परमेश्वर के राज्य में तो बहुत उत्साह से भरे हुए They हैं, are encouraging. वो बहुत ही प्रोत्साहन से But भरे in the हुए हैं। kingdom of darkness, the same guys become restless. लेकिन अंधकार के दुनिया में राज्य में वो अशांत लोग बन जाते हैं। So world has a spirit, God has a spirit. तो परमेश्वर का एक आत्मा है, दुनिया में एक आत्मा है। So God is a spirit. परमेश्वर आत्मा है, Even world is a spirit. तो ये दुनिया भी एक आत्मा है। So we should understand world, you have to identify the world. तो आपको इस दुनिया को पहचानना होगा। If you don't identify the world, you will be trapped by the world. तो अगर आप इस दुनिया को नहीं पहचानोगे तो वो आपको अपने फंदे में फंसा देगा। It will actually trap you in this world. वो सचमुच आपको इस दुनिया में फंसा देगा। Many are trapped in a lifestyle. कई लोग एक जीवन शैली में फंसे हुए हैं, Many are trapped in a relationship. कई लोग एक रिश्ते में फंसे हुए हैं, Many are trapped in the area of money. कई लोग पैसों में फंसे हुए हैं, Many are trapped in medicines. कई लोग कई दवाइयों में फंसे हुए हैं, They are all trapped by the world. वो कई सारे वचनों में वो फंसे हुए हैं। So unless you overcome, you cannot enter rest in your life. जब तक आप विजयी नहीं बनते तब तक आप अपने जीवन के विश्राम में प्रवेश नहीं कर So पाओगे। world not only has a spirit, world has a wisdom also. तो ये दुनिया में केवल एक आत्मा नहीं बल्कि उसका एक ज्ञान भी है। We carry the wisdom of God. हम परमेश्वर के ज्ञान से चलते हैं World also has some wisdom. और ये दुनिया में भी कुछ ज्ञान है। 1 Corinthians chapter 3 verse 19. और पहली कोरिन्थियों की पत्री तीसरा अध्याय उसका 19वां वचन। For the wisdom of the world is foolishness with God. क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। Wisdom of the world is there in the world.
और ये दुनिया का जो ज्ञान है वो इस दुनिया में है, They may be foolishness in front of God. लेकिन परमेश्वर के सामने ये मूर्खता की So बातें हैं। people who have the wisdom of God, wisdom of the world, they will think you are mad. और तो जो लोगों के पास इस दुनिया का ज्ञान है वो समझेंगे कि आप पागल हो, Yes, because it is foolishness. क्योंकि ये मूर्खता लगता For है। God, that wisdom is foolishness. For the world, this wisdom is foolishness. परमेश्वर के लिए दुनिया का ज्ञान मूर्खता है और दुनिया के लिए परमेश्वर का ज्ञान मूर्खता But we लगता should है। understand in the wisdom of God there is rest. लेकिन हमें समझना है कि परमेश्वर के ज्ञान में विश्राम है। Huh? Tell rest. आप कहे विश्राम। In the wisdom of God there is rest. परमेश्वर के ज्ञान में विश्राम है, There is joy. आनंद है। Rest is a synonymous word with peace. और विश्राम जो है वो उसका समानार्थी शब्द शांति है। Jesus said, I will give you my peace. यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। Today in our lives, do we carry His peace? आज अपने जीवन में क्या हम उसकी शांति लिए चल रहे We हैं? don't carry. If we carry His peace, then we carry His rest. अगर हम उसकी शांति लिए चल रहे हैं तो हम उसके विश्राम को लेकर चलते And हैं। the world has a lot of things to give you. और ये दुनिया के पास कई सारी चीजें हैं जो आपको दे सकता है। Okay.